دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت مفتی صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلام بعد میں کر لیں گے، ہے نا، پہلے پھر یہی جان لیجئے کہ میں دیوبند سے قبل الکلام حدیث میں آیا ہے، آپ بول رہے ہو سلام بعد میں کر لیں گے۔ چلیے تو پھر ہمیں یہ بتا دیجئے مفتی صاحب، جیسے ہم کو یا ہمارے جو بزرگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے تعلق سے آپ کا اور آپ کی جماعت کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے حضرت، بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، ہمارا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے اس بات کو تو آپ چھوڑ دیجیے، آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ 15 سال تک مسلک دیوبند میں رہے، جی، آپ کو کیا کمزوری مسلک دیوبند میں نظر آئی جس کی وجہ سے آپ نے مسلک دیوبند کو چھوڑ دیا، اور اب مسلک اعلیٰ حضرت میں آپ کو کیا اچھائی نظر آئی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو اختیار کیا، ہمیں پہلے یہ بات بتا دیجیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ کا نام بھول گیا۔ فرحان صدیقی۔ اچھا جی، مفتی فرحان صدیقی صاحب ہیں نا؟ جی بتائیے۔ چلیے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا نام ہے آپ کا۔ کہاں سے ہیں حضرت؟ میں دیوبند سے ہی ہوں، دیوبند میں ہی رہتا ہوں۔ ارے واہ، کیا بات ہے، آپ دیوبند سے ہیں؟ جی۔ اچھا، ہمارا ایک دوست ہے، اکرم نام ہے شاید، یا پھر کچھ اور نام ہے، دھیان نہیں رہا، موبائل میں سیو تھا میرے پاس نمبر۔ اچھا۔ بہرحال وہ سنی تھا۔ اچھا۔ ہاں، سنی حنفی بریلوی تھا، اور باقی جو اس کے خاندان والے ہیں وہ دیوبندیوں میں ہیں۔ اچھا۔ آس پاس میں کوئی ایک گاؤں پڑتا ہے شاید، وہاں سے ہیں۔ خیر، آپ نے پوچھا کہ دیوبندی جماعت میں کیا کمزوری نظر آئی اور اس میں کیا خوبی نظر آئی، کس وجہ سے جو ہے دیوبندی جماعت کو چھوڑ کر جی میرا یہ سوال ہے۔ جی سنی حنفی بریلوی میں چلے گئے۔ جی، سب سے پہلے حضرت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اور آپ جب تک بھی بات کریں گے انشاءاللہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے۔ جی بالکل، میں نے میرے بڑوں نے کبھی مجھے غلط بات کرنا سکھایا نہیں، میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں۔ جی آپ بتائیے۔ جی بتائیے۔ یہ جو ادب ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اب ٹاپک پہ آئیے، آپ کمزوری بتائیے۔ جی، کمزوری یہی ہے کہ علماء بس علماء دیوبند کے پاس بزرگان دین کا، انبیاء اکرام کا، اولیاء اکرام کا ادب نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے بڑی لمبی لمبی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے تعلق سے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے تھوڑا، آپ نے کیا بات دیکھی جس کی بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ علماء دیوبند انبیاء کرام کا ادب نہیں کرتے؟ کیا بات دیکھی، کس بات کی بنا پر آپ نے کہا؟ اکابر دیوبند میں سے کس بزرگ سے آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ انبیاء کی توہین کر رہے ہیں؟ اب بتا دیجیے۔ جی حضرت، بہت سی بتا دیجیے۔ جی مفتی صاحب، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک بات بتا دیجیے، آپ بہت ساری چھوڑیے۔ اچھا، ایک بات بتا دیں۔ جی بس ایک یہ بتا دیجیے جس سے لگ رہا ہو کہ اکابر دیوبند نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی۔ اچھا جی بتا دیجیے۔ تو حضرت یہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ شان و عظمت والا کوئی اور نبیوں میں کوئی اور نبی ہے؟ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے درجے میں بلند ہے۔ اب بتائیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ ہمارا عقیدہ ہے، اکابر دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جی ماشاء اللہ،
मगर आपका अकीदा है, ये आपका नजरिया है हजरत, मगर जो उलमाए देवबंद के बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं जी हाँ, उनका नजरिया कुछ और ही है हजरत। जी, आप बता दीजिए ना कौन से बुजुर्ग से आपने कुछ सुना हो, देखा हो कि उन्होंने ऐसा बयान किया है। इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। जी बताइए। देखिए, थानवी जी ने अपने आप को अशरफ सबाने में कहा कि मैं तो अपने आप को कुत्ते और सुअर से भी बदतर समझता हूँ। अपने आप को? हाँ हाँ, अच्छा, कहा है ना। नहीं, मुझे आप आगे बात पूरी बताइए मुकम्मल, उसके बाद। मगर ये उनकी आजिज़ी और इनकिसारी है। अच्छा, बड़ा आदमी अपने आप को कुछ भी कह सकता है, अच्छा, मगर छोटे को हक नहीं बनता कि वो अपने बड़े के लिए कोई बेअदबी का अल्फाज बोले। जी जी, आप बात बताइए मुकम्मल कीजिए अपनी बात। अच्छा, तो आप तो मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती साहब बताया आपने अपने आप को। जी जी, तो दारुल उलूम देवबंद से ही फारिग हैं आप भी? जी, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको तो पढ़ना चाहिए था उस किताब को जो थानवी जी की किताब है अशरफ सबाने। तो मुकम्मल की। अब मुझे ये बात आपने कहा था कि अकाबिर देवबंद अंबिया का अदब नहीं करते। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या बात आपने देखी जिसमें अंबिया की तौहीन हो रही है? आप मुझे इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा। जी बता दीजिए। उलमाए देवबंद के जितने भी चाहने वाले हैं जी, क्या थानवी जी को किसी ने ये बोला कि हमारे थानवी जी कुत्ते और शोर से बदतर हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही फरमाया है। नहीं, ये किसी ने नहीं बोला, ना उन्होंने खुद फरमाया है ये बात। नहीं, कहा है ना उन्होंने। नहीं कहा है। अशरफ सबाने में अगर मुझे आप दिखा दें तो मैं अभी के अभी ब्रेलवी होने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने कुत्ते स्वर से, इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो कैसे खुद को कुत्ते स्वर से बदतर बता सकता है? और वो तो एक आलिम दीन थे, उनसे कैसे खुद हो सकता? अगर आप दिखा दे तो मैं अभी के अभी मसला के आला हजरत को इख्तियार कर लूँ। हजरत जाओ, ये एक ही आपके आलिम ने नहीं कहा है, आपके और आलिमों ने भी कहा है। और आपने इतनी और कौन, और बताइए कौन है? जी, आप सच्चे दिल से कह रहे हैं हजरत कि आप अभी अभी जो है उलमाए देवबंद को छोड़ के उलमाए अहले सुन्नत सच्चे दिल से कह रहा हूँ। अगर ये बात आप दिखा दें कि मैं कुत्ते सुअर, आपने ये कहा है ना, कुत्ते सुअर से मैं बदतर हूँ, ऐसा ही कुछ कहा है ना आपने? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को कुत्ते और सुअर से ही बदतर समझता हूँ। अच्छा, ये बोला है उन्होंने? हाँ ठीक है, अगर ये दिखा दे आप तो मैं अभी के अभी दिल से कह रहा हूँ आला मसला के आला हजरत को इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात, अभी आपने ये बात नहीं बताई कि आप अंबिया की तौहीन कहाँ हो रही है। अपने वो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब वो बात बता दीजिए। हजरत, मैं अगर ऐसे एकदम से बता दूंगा तो फिर मतलब बात करने में मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, आप धीरे धीरे आइए, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या उलमाए देवबंद में से जो उलमाए देवबंद के चाहने वाले हैं, यानी जो थानवी जी के नीचे वाले हैं जी, क्या उनका ये हक बनता है कि वो थानवी जी को कहें कि थानवी जी कुत्ते और सुअर से बदतर हैं? बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि सकता है। जी जी जी, ये उनकी जो है समझ लीजिए बहुत बदतमीजी वाली बात मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मानी जाएगी। हर मजहब और हर कुनबे और कबीले में अपने बड़ों की तारीफ की जाती है, ना कि तौहीन। बिल्कुल की जाती है। आपकी बात बिल्कुल बजाएं, आप बात बताइए पूरी आगे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आगे ऐसे धीरे धीरे बताऊंगा इंशाल्लाह। जो अपने बुजुर्गों की तौहीन करे उसको बेअदब कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और ये बात क्या नाम है, हिकायत औलिया में भी लिखी हुई है। जी बिल्कुल, मैं खुद इस बात की बात कर रहा हूँ, बड़ों की जो तौहीन करता है वो बेअदब गुस्ताख खिलाता है। अब मुझे आगे बताइए। जी जी हजरत, और तकवे इसमें हिकायत औलिया में ये भी लिखा है कि जो उलमाए दीन की यानी मौलवियों की, आलिमों की तौहीन करता है, उनके शान व अज़मत के खिलाफ जो है बकवास करता है, ठीक है, उलमा की तौहीन करने वाले का मुंह कब्र में मरने के बाद जो है वो किबले की तरफ से फिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी हर बात, इस बात के साथ मैं खुद आपको हवाला देने की जरूरत नहीं क्या तो, लेकिन मैं खुद मानता हूँ इस बात को। अच्छा, उलमा की तौहीन करता है जो, अल्लाह ताला के यहाँ उसका खात्मा दुनिया में भी दिखाते हैं, अल्लाह ताला आखिरत में भी। जी 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 माशाल्लाह, चलिए बड़ी अच्छी बात है हजरत। जी बिल्कुल, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। जी, अब आज टॉपिक पे आइए, आप आइए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और अंबिया इकराम को जर्रा नाचिस से कमतर और चमार से ज्यादा जलील कहना,
یہ ادب ہے یا بے ادبی حضرت؟ نعوذ باللہ بالکل بے ادبی. یہ تو قریب الکفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ استعمال کرنا. آپ بتائیے کس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں؟ جی دھیرے دھیرے بتاؤں گا انشاءاللہ. جی کیونکہ بتائیے, کوئی بات نہیں, میں فری ہوں بالکل. اچھا بتائیے. جی کیونکہ ایک دو توہینیں نہیں, بہت ساری توہینیں ہیں. جی آپ بتائیے, بے فکر ہو گئے, میں فری ہوں بالکل. جی حضرت, سکون سے بات ہوگی, پیار محبت سے بات ہوگی تو ہو سکتا ہے شاید سمجھ میں آئے, اور آپ نے شاید سچے ہی دل سے بولا ہوگا کہ اگر یہ باتیں آپ ہمارے کتابوں میں, ہمارے بزرگ کتابوں میں ثابت کر دیں تو انشاءاللہ میں ابھی چھوڑ کے جو ہے بریلوی بن جاؤں گا. ابھی مسئلہ کیا حضرت کو ابھی اختیار کر لوں گا, میں دیوبندیت کو چھوڑ دوں گا اگر آپ نے دکھا دیا ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. چلیے بڑی اچھی بات ہے. یہ سارے حوالے انشاءاللہ میں آپ کے پاس بھیجوں گا, اور اگر متفق ہوں تو بھی ٹھیک ہے, اور نہیں ہو تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ آگے بتائیے, اپنی بات تو بتائیے. جی تقویۃ الایمان میں یہ بات لکھی گئی, اللہ رب العزت کی شان بیان کرنے کی آڑ میں انبیاء اکرام, اولیاء اکرام کی توہین کی گئی, اور لکھا گیا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے. یہ تو کوئی اگر پاگل بچہ بھی ہوگا, پاگل انسان بھی ہوگا, تو وہ یہ جانتا ہی ہے کہ ہاں کائنات کو چلانے والا کوئی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی ہے نا. آپ اتنی وضاحت میں نہ جائیں, مجھے سب معلوم ہے, آپ مگر ٹاپک کی بات بتا دیجیے. جی مفتی صاحب, خیر الکلامی ما اللہ ود اللہ. اب مختصر میں آپ بات بتا دیجیے. عالم ہونے کے باوجود اس طرح کی بات لکھنا انبیاء اکرام, اولیاء اکرام کی شان میں بول دینا قریب الکفر ہے. اب ماشاء اللہ حضرت اللہ علیہ وسلم کی شان میں, لیکن مجھے آپ یہ بتا دو جی کس نے بولا ہے, کہاں پہ بولا ہے, بس اتنی دو باتیں بتا دیجیے. آپ اتنا لمبا کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل دہلوی, خود اقرار کر رہا ہوں. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے جی, اور آگے لکھا صفحہ نمبر اسماعیل صاحب. ہاں اچھا جی. یہ بات جو میں نے پہلے بولی یہ صفحہ نمبر 65 پر ہے, اور جو میں دوسری بات بتانے جا رہا ہوں وہ صفحہ نمبر 300 یا 228 پر ہے, 27 سے 28 تک. جی وہاں لکھا گیا کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اللہ رب العزت کا مقابلہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے حضرت, مگر اللہ رب العزت کی شان بیان کرنے کے آڑ میں اب تمام مخلوق کو جو ہے گھسیٹنا, تمام مخلوق کا نام لے کر. دیکھیے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, مسئلہ کے دیوبند کے آپ نے اپنی وہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہوا ہے. مسئلہ کے دیوبند کے جو 4 بڑے سمجھے جاتے ہیں, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی, مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, اور مولانا محمود اللہ حسن صاحب دیوبندی. ٹھیک ہے, 4 ہمارے بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں جن پر مسئلہ کے دیوبند کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے. ان حضرات میں سے آپ کسی کی شان, اب کسی کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ ہاں ان کے لیے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, مگر یہ آپ کے بڑے تھے. مولانا اسماعیل صاحب کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں دہلوی کی, مجھے ان کا علم نہیں ہے, اور وہ شاید دیوبند کے قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتا رہے ہیں. آپ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے سے پہلے کی بات آپ شاید بتا رہے ہیں. آپ ان میں سے بتا دیجیے جو مسلک دیوبند میں آپ رہے ہیں, جنہیں مسلک دیوبند اچھے سے جانتا ہے, جن پر مسلک دیوبند کی بنیاد ٹکی ہوئی, انہوں نے کیا غلطی کی ہے, کیا کمزوریت میں نظر آئی, وہ بتا دیجیے. جی بالکل انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. تو آپ نے کہا, سنو پہلے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں یہ آڈیو جو ہے گروپ میں ڈالوں گا, آپ مجھے مختصر کر کے بتا دیجیے تاکہ جب لوگ سنیں وہ بور نہ ہو. ہاں نہیں بور نہیں ہوں گے. دیکھیے بات کے اگر دونوں پہلو دکھائے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. ایک پہلو سے کام نہیں چلے گا حضرت. جی اب بتائیے. ایک پہلو سے کام نہیں چلے گا, دونوں پہلو دکھائے جائیں. یہ تو اب مختصر کی بات ہے. آپ نے دو باتیں بولی ہیں کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا, ٹھیک ہے, آپ نے یہ تو بولا ہے نا انبیاء کی شان میں گستاخی یعنی ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا کابر دیوبند. میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھی کہ کون سے اکابر ہیں جنہوں نے ادب نہیں کیا اور کہاں پر آپ حوالہ دے رہے ہیں, بس یہ 2 باتیں مجھے بتا دیجیے. جی تو مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کو آپ اپنا اکابر مانتے ہیں حضرت یا نہیں مانتے؟ میں نے ابھی کیا بولا, جو 4 جن پر مسلک دیوبند کی بنیاد ہے یا ان کے بعد جو مسلک دیوبند کے اکابر علماء ہیں ان کی بات مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے, یہ بھی اکابر علماء میں ہوں گے لیکن میرے علم میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولانا اسماعیل کی جن کی بات کر رہے ہیں آپ,
मौलाना इस्माइल साहब देहलवी बोला ना आपने? जी हाँ हजरत, आप तो इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं, और उनकी किताबें आपके खुद मदरसे में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान जैसी किताबें, सिरात मुस्तकीम जैसी किताब आपके खुद मदरसों में लाइब्रेरी में हजरत, लाइब्रेरी में है, क्योंकि मेरी मदरसे के तालिब इल्मों से बात हुई है हजरत, है ना? जी होगी। आप इन अकाबिर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं जिनके बारे में पूछ रहा हूँ? जी बिल्कुल बताऊंगा। देवबंद की बुनियादें उनके बारे में आप बताइए, आप कहाँ इतनी दूर जा रहे हैं? बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने इसी किताब को, तक़वियतुल ईमान किताब को कहा है कि ये किताब कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, और इसको अपने घर में रखना और इसको पढ़ना, इस पर अमल करना, ये ऐन इस्लाम है। अच्छा जी हजरत। तो बताइए, जब मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब मान रहे हैं, बात कहिए। जी हाँ। और उस किताब में क्या लिखा हुआ है? कौन सी में? तक़वियतुल ईमान में क्या गलत लिखा हुआ है उसमें, ये बताइए। अभी तो आप कह रहे थे हजरत कि ये हमारे अकाबिर नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ। अब आप कह रहे हैं क्या गलत लिखा है? मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने, जब आप रशीद अहमद गंगोही की बात आप कर दी, अब मैं पूछूंगा आपसे। आप बोले रशीद अहमद गंगोही कह रहे हैं कि किताब ऐन इस्लाम है। अब मुझे, अगर उन्होंने ऐसा बोला है, जी ठीक है, पहली बात तो है कि उन्होंने बोला नहीं बोला, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो अब मुझे बताइए आप क्या गलती? क्योंकि अगर अकाबिर देवबंद में से किसी ने ऐसा बोल दिया कि वो किताब अपने घर में रखी है, उस किताब में इस्लाम के अकायद बयान किए गए, जो भी चीज बयान की गई, तो अब मेरी बात वो सीरियस लेता हूँ मैं उस बात को, क्योंकि वो हमारे अकाबिर है, जो बात कह देते हैं हमें दिल से वो बात तस्लीम होती है। अब आप बताइए उस किताब में क्या गलत है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। एक पहलू और सुन लीजिए मौलाना अशरफ, मैं कुछ और अभी बताना चाहता था, पर वो अब बात इधर आ गई, तो अब यही बात सुना दूं, वरना मैं भूल जाऊंगा फिर। मौलाना अशरफ थानवी साहब अपनी किताब हिकायत औलिया में कुछ फरमा रहे हैं इसी के ताल्लुक से। हिकायत औलिया तो आपने पढ़ी होगी? जी बताइए आप। मतलब पढ़ी है या नहीं हजरत? नहीं पढ़ी है, आप बता दीजिए। नहीं पढ़ी है? देख लो। ये किताबें तो जो उलमाए देवबंद के मुफ्ती साहब होते हैं हजरत, वो मुनाजरे के लिए ग्रुप बनाया गया था, और आप कह रहे हैं मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो ये तो बात मतलब मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। हिकायतुल औलिया की जिसकी बात कर रहे हैं आप, मैंने सब पढ़ रखी है, उनमें से आप जो बारे में आप बता रहे हैं मुझे, आप वो बात बता दीजिए। अच्छा हजरत ठीक है। मैं अब लाइन पे क्यों नहीं आ रही, इतनी लंबी रिकॉर्डिंग कौन सुनेगा, मुझे ये तो बता दीजिए। सब सुन लेंगे इंशाल्लाह। दो बातों में बात खत्म कर दीजिए। हमारे अकाबिर की वो कमजोरी बताइए और कहाँ पे लिखा हुआ है ये बता, दो चीज बता दीजिए, अब खत्म बात। अच्छा कहाँ लेके जा रहे हो? मौलाना अशरफ थानवी साहब लिखते हैं कि जब इस्माइल देहलवी साहब ने ये किताब लिखी तो लोगों को जमा किया। पहले ये किताब जो है वो अरबी में लिखी गई थी, फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेशन किया, उर्दू में लिखी। ऐसे बात करेंगे तो आप घंटों चले जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, आपने व्हाट्सएप पे लगाया कि अकाबिर देवबंद के 4 अकाबिर ऐसे हैं जिनको मैं काफी समझता हूँ, ऐसे लिखा है ना आपने? हाँ उसमें लिखा है। ठीक है, वो 4 अकाबिर के मुझे नाम बताइए। सबसे पहले थानवी जी हैं, नंबर 1। नंबर 2 कासिम नानोतवी जी हैं। 2 नंबर 3 इस्माइल, ये क्या नाम है इसका, रशीद अहमद गंगोही साहब हैं। और 3 ये आशिक इलाही मेरिठी हैं। और 4 ये क्या नाम है आपके जो हो गए 4 हो गए। अब मुझे ये बता दी आप, अब इस्माइल देहलवी, अब लंबी बातें मत जाइए, अब जिन 4 के नाम बताए इनमें से सिर्फ हजरत थानवी के बारे में क्या खुफिया बात देखिए आपने, ये बता दीजिए, बस बात खत्म, लास्ट बात है। ठीक है इंशाल्लाह। हजरत मैं अगर आपके ताल्लुक से ये कहने लगूं, आप तो बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, काबिल मुफ्ती माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आलिम उलमाए देवबंद में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जनाब। हजारों वाकयात तुम्हें ऐसे दिखा दूंगा हजरत गंगोही के, कि उन्होंने जमात दूसरी बिरादरी के लोगों को अपने गले से, जिनसे लोग बात करना नहीं पसंद करते, उन्होंने उन्हें अपने गले से लगाया है, उनकी मेहमान नवाजी की है, रातों को खुद नीचे सोए, उनको चारपाई पर सुलाया। ऐसी बात मत कीजिए अकाबिर देवबंद के बारे में, आप सिर्फ पॉइंट पे आइए। हजरत थानवी के बारे में मुझे बता दीजिए क्या खुफिया बात देखी आपने, बस। खैर ठीक है, बात अदब और बेअदबी पर ही चल रही है ना? जी मैं जी मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मुफ्ती क्या नाम बताया था, मुफ्ती फरहान सिद्दीकी साहब का जो इल्म है, या मुफ्ती फरहान साहब कोई काबिल आलिम नहीं है। अच्छा। मुफ्ती फरहान साहब को
جتنی نالج ہے، جتنا علم ہے، اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ہے. تو میں نے یہ آپ کی تعریف کی ہے یا توہین؟ توہین کی آپ نے. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ توہین ہی کی ہے. اور یہ بات وہی کہے گا جو مفتی فرحان سے جو ہے الرجی رکھے گا. جی بالکل. غلط تو نہیں کہا میں نے مفتی صاحب؟ جی بالکل آپ تشریح زیادہ کر رہے ہیں، آپ پوائنٹ آ جائیے نا. خیر الکلام ما قل ودل، اپنے ہی نہیں پڑھائے گی آپ. میں حضرت دھیرے دھیرے بتاتا ہوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے. 20 منٹ کی ہماری ریکارڈنگ ہو گئی ہے، بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب. تو یہ کہنا کہ جیسا علم مفتی فرحان صاحب کا ہے ایسا علم تو ایک چھوٹے سے بچے کو ہے، پاگل بچے کو ہے، اس میں مفتی فرحان صاحب کی جی توہین کوئی بڑائی نہیں ہے. کتنی بار بولوں؟ جی بالکل آپ بتا دیجیے، آگے بات بتائیے نا. چلیے، مگر اس توہین سے صرف انسان گناہگار ہوگا. بد کلامی کی ہے، یہ غیبت کی ہے اور برائی کی ہے، چگلی کی ہے. اچھا یہ چگلی مانی جائے گی کیونکہ آپ تو ایک اچھے عالم ہیں، مفتی ہیں. جی آپ بتا دیجیے آگے ان کی وہ تو بتائیے کمزوری. اچھا. اگر تھانوی جی کو یہ کہا جائے کہ تھانوی جی کو جیسا علم حاصل ہے ایسا تو ایک چھوٹے سے نادان بچے کو، پاگل انسان کو بھی ہے، یہ بھی توہین ہی ہے نا؟ بالکل توہین ہے. آپ مجھے آگے بات بتا دیجیے یار. یہ تو بچہ بھی جانتا ہے جو باتیں آپ کر رہے ہو تشریح. آپ سے زیادہ توہین ہوگی. جی آپ اپنے لیے تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ارے یار چلو مجھے کہہ دیا چھوڑو. کریں گے لیکن اللہ کے رسول کے لیے کون برداشت کرے گا؟ آپ یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے بات بتا دیجیے. ہاں بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں خود اس بات کو اقرار کر رہا ہوں یار. تم بات کو لمبا کیوں کر رہے ہو؟ میں خود کہہ رہا ہوں کوئی توہین کرے گا تو اللہ کے رسول کی بالکل ناقابل برداشت ہے. آپ مجھے بات بتا دیجیے توہین کس نے کی ہے. جی حضرت کافی سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں آپ، کافی اچھا علم ہے آپ کے پاس. جی آپ تھانوی جی نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین کی ہے. کیا توہین کی ہے بتائیے؟ توہین یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے جو ہے جانوروں کے علم جیسی تشبیہ دی ہے. جانوروں کے علم؟ ہاں نعوذ باللہ من ذالک. جانوروں سے اب ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا. اب یہ بتا دیجیے کہاں پہ دیکھا ہے آپ نے، کون سی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے حضرت تھانوی نے؟ حضرت تو یہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا نا؟ نہیں پڑھا ہے. کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ بلیم کر رہے ہو حضرت تھانوی پہ الزام لگا رہے ہو. کتاب بتائیے کس میں لکھا ہے اس نے. جی کتاب انشاءاللہ میں بتا دوں گا، پر آپ بتا دیجیے. بس یہی بات ختم ہو جائے گی. آپ اس کتاب کا حوالہ دے دیجیے، اس کا نام بتا دیجیے. اگر ایسا لکھا ہوا تو آج ہی میں مسئلہ ہے کہ دیوبند کو چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر. حضرت سچے دل سے کہہ رہے ہیں؟ سچے دل سے بول رہا ہوں. مجھے کتاب اور اس کا حوالہ بتا، کتاب کا نام بتا دیجیے، صفحہ نمبر پیج نمبر بتا دیجیے. صفحہ نمبر اور پیج نمبر؟ جی صفحہ نمبر اور پیج نمبر ایک ہی ہے حضرت. صفحہ بھی اسی کو بولتے ہیں، پیج بھی اسی کو بولتے ہیں. پیج اور صفحے میں فرق ہوتا ہے بہت. پیج پورے اس کو بولتے ہیں جو دونوں طرف کا ہوتا ہے، صفحہ ایک طرف والے کو بولتے ہیں. ایک پیج میں 2 صفحے ہوتے ہیں. آپ کو ابھی اتنا بھی نہیں پتا صفحہ اور پیج کسے کہتے ہیں حضرت؟ تو پیج جو بولا جائے گا تو 2 سائڈ کو نہیں، پورا ایک پنے کو جو ہے پیج بولا جائے گا. پیج بولا جاتا ہے پورے کو، اور صفحہ بولا جاتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف جو 2 ہوتے ہیں. ایک پیج میں 2 صفحے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے حضرت. تو آپ نے کہا کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا. جی بالکل. اب مجھے دکھا دیجیے وہ اسکرین شاٹ. لیکن ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ وہ غلط ثابت ہوا جو آپ نے یہ بولا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ مسئلہ کے دیوبند اختیار کر لو گے؟ مجھے آپ ٹکڑے کرنا اور میں اسٹامپ پیپر پہ جو ہے سائن کر دوں گا کہ آپ کی طرف جو ہے کوئی حکومت کی طرف سے کارروائی نہ ہو، اور مجھے ایسی سزا دینا جو سب سے کڑی سزا ہو. اور اگر یہ بات سچ ہے اور واقعی جو ہے اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے تو سچے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ علماء اہل سنت کو جو ہے قبول کریں گے؟ جی بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، دکھا دیجیے. آپ مجھے سینڈ کر دیجیے. اچھا سینڈ بھی کرنا ہے؟ تبھی تو مجھے معلوم ہوگا نا. آپ مجھے اسکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کر دیجیے کہاں دیکھا ہے، یا مجھے کتاب کا نام صفحہ نمبر مجھے بتا دیجیے. میں خود دیکھ کے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں. لیجیے آپ جو ہے پڑھ لیجیے. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. اچھا. اور صفحہ نمبر ہے 15. صفحہ نمبر لکھا ہے حضرت تھانوی نے لکھ رکھا ہے. جی ہاں تھانوی جی کی کتاب ہے، اور لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب.
اچھا اگر بعض غیب ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اچھا اس طرح کہتے ہیں ایک منٹ آپ بات کو کاٹتے کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ نے ڈائریکٹ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ دے رہے ہیں جانوروں کے علم سے، یہ کاٹ کے کیوں بولا ہے آپ نے؟ پوری بات بتاؤ نا آپ۔ اچھا حضرت بےہودہ بات کر رہے ہیں آپ۔ اچھا تو حضرت یہ بتائیں، حضرت خان میں نہیں دیکھو ایک منٹ رک جاؤ، آپ علم غیب کے قائل ہیں اللہ کے رسول کے لیے؟ جی ہاں نعوذ باللہ من ذالک، کیوں؟ جی اللہ تبارک کا علم تھا، ایک منٹ رکیے، اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، ٹھیک ہے، آپ اقرار کر رہے ہیں نا اس بات کا؟ ہاں میں اقرار کر رہا ہوں۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، یاد ہے وہ تو واقعہ معلوم ہوگا آپ کو، قرآن کریم میں بھی اس کی حضرت عائشہ کی کیا کہتے ہیں اسے جو الزام لگایا تھا اس کی برات ظاہر ہوئی تھی، یہ واقعہ تو معلوم ہوگا آپ کو؟ ہاں سب معلوم ہے الحمدللہ، اس میں حکمت ہے۔ جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور اللہ کے رسول کتنے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول نے تمام بیویوں سے بولنا بھی بند کر دیا، ایک طرف مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، صحابہ سے بھی کلام کرنا بند۔ مجھے بتا دیجیے اللہ کے رسول کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا اللہ کے رسول ایسا کرتے؟ ایسے واقعات موجود، اللہ کے رسول 3 دن تک کے یہ آپ اللہ کے رسول کی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بولنا وہ کر دیا، مطلب ایک طرف الگ تھلگنا، صحابہ کرام سے بات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ منافق سچی بات، کچھ اللہ کے رسول کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر آپ کے اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو نہ تو قرآن کریم میں حضرت عائشہ کی برات ظاہر ہوتی اور نہ اللہ کے رسول اس وقت میں صحابہ سے اور سب سے اس طریقے سے الگ تھلگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا تھا میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خیر انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، پہلے اسی ٹاپک سے نمٹ لیجیے۔ نہیں سنیے، آپ نے صرف مجھے اتنی بات بتائی، سنو دیکھیے پھنسے نہیں ہیں آپ میری بات سنیے، آپ نے صرف مجھے اتنی بات بتائی ہے کہ حضرت تھانوی نے اللہ کے رسول کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی، یہ کیا بات ہوئی آپ کی؟ ایسے تو اگر قرآن کریم کی آپ چھوٹی سی آیت اٹھائیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کیا ترجمہ ہوگا مجھے بتانا اس کا؟ اگر تم اتنی پڑھ کے نشے کی حالت، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، نشے کو چھوڑ دو۔ ابھی اگر آپ پوری آیت نہیں لینے صرف جز لیں گے ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب آپ پوری آیت پڑھو گے تبھی تو آپ کو پتا ہوگا نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ اب آپ یہاں اپنے پوری بات مجھے بتائیں گے، آپ نے بول دیا کہ جانوروں کے علم کی تشبیہ، اب پہلے یہ تو بتا دیتے آپ کس علم کی بات چل رہی ہے؟ اللہ کے رسول کو آپ علم غیب سنیے، اللہ کے رسول صرف بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کریم خود اس کی تصدیق کرتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، بس میری طرف فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں مجھے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے تو مجھے پتہ نہیں لگے گا۔ ابھی اللہ کے رسول سے قیامت کے بارے میں معلوم کیا گیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کیسا غیب کا علم؟ یہ تو ارے یار کچھ تو کرو، آپ غیب کے علم کے قائل ہو گئے، کچھ تو دماغ سے کام لو، آپ اپنے دماغ کو یوز کرو آپ، اور مجھے آپ گھما پھرانے کے بعد آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں صرف چھوٹی سی ایک بات بتا کے۔ پھنس تو گئے ہیں آپ، پھنس تو گئے ہیں اسی لیے بھاگ رہے ہیں۔ میں بھاگ کر رہا ہوں؟ میں تو آپ کو بھگا کے بھی نہیں بھاگوں، آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی دیکھیے میں نے تو آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا حضرت، ایک منٹ، آپ کافی ٹائم سے بول رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں بڑے پیار سے ادب سے، آپ کی گفتگو کو سن رہا ہوں، ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ جی بتائیے، آپ بتائیے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی ایک ٹاپک کو چن لیجئے، جو بھی آپ کا ٹاپک ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جس پہ آپ آسانی، ایک منٹ حضرت، جس ٹاپک پہ آپ کو آسانی ہو بات کرنے میں، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف گفتگو توہین رسالت پر چل رہی ہے، آپ نے کہا کہ مجھے بس اتنا بتائیے کہ کس نے توہین کی ہے۔ اب میں نے شروع میں حضرت ایک منٹ پہلے سنیے حضرت، سنیے تو حضرت، دیکھیے جب میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں تو آپ بھی میری بات کو سنیں، ہے نا؟ سنائیے۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا وہ کافر ہے، اور جو توہین کرے گا، غلط الفاظ بولے گا، وہ حد کفر تک ہے۔ بالکل۔ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا علم ایسا ہے تو یہ آپ کی جو ہے شان بیان ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا توہین ہو رہی ہے۔
जी कहा था। फिर मैंने थानवी जी के लिए मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ, जो मैंने पहले कहा था वो अब भी अड़ियल हूँ मैं उस बात पे, अब भी कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, तो मेरी जो पकड़ है पहले उस पर आप तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। ठीक है हजरत जी बताइए। थानवी जी इस किताब में कहते हैं, किसी पूछने वाले ने पूछा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग इल्म गैब का अकीदा मानते हैं हुजूर के लिए, जी तो ये हुजूर के लिए इल्म गैब का अकीदा रखना जायज है या ना जायज है, दुरुस्त है या नहीं? ठीक है, तो उसके ताल्लुक से यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। जी बिल्कुल। अब थानवी जो आप मुझे सुना रहे हो जी, थानवी साहब ने कुल इल्म गैब का तो इनकार कर दिया, कुल इल्म गैब तो हम भी नहीं मानते, थानवी जी भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मगर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया गया, अच्छा कुरान पाक आज नाजिल हुआ है या फिर 1400 साल पहले जो है नाजिल हो चुका था? 1400 साल पहले। माशाल्लाह। तो थानवी जी ने 1400 साल बाद में भी 1400 साल बाद में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की दलील नहीं मिली कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को गैब का इल्म अता किया है। अरे आप फिर वही बात उठा रहे हैं। सुने, अब सुने, अब इस बात पे आ जाइए। हजरत सुने, मैं तौहीन तो दिखा दूं, आपने कहा कि तौहीन दिखाइए, मैं तौहीन तो दिखा दूं आपको। ये तो आपकी तौहीन है, हमारी तौहीन नहीं है। आप अल्लाह के रसूल के लिए गैब का इल्म साबित कर रहे हैं, तौहीन आपकी है। अच्छा ठीक है, इल्म गैब पर ठीक है, इसके बाद इल्म गैब पर बात होगी। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक चुनेंगे, फिर इधर उधर नहीं भागेंगे, ना नूर बशर पर, ना हाजिर नाजिर पर, ना मदद पर। ठीक है, एक टॉपिक चुन लें, फिर उसी टॉपिक पे बात होगी। देखिए मैं टॉपिक तो बिल्कुल चुनेंगे और बात भी करेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा था हजरत, पहले ये बात तो पूरी कर दूं मैं। आपकी बात में समझ ऐसे मजा नहीं आता ना हजरत, आप समझ गए ना, मैंने तो नहीं सुनाया ना। जब मैं आपको बोल दूं फिर मुझे समझाना हजरत, है ना? बड़ी अच्छी बात होगी अगर मेरी बात को सुनेंगे। तो मैंने आपसे यहाँ कहा, थानवी जी कह रहे हैं कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। तो यहाँ थानवी साहब ने भी कुल इल्म गैब न माना बल्कि बाद ही इल्म गैब माना। फिर इस बाद इल्म गैब को मानते हुए कहते हैं, ठीक है, कि अगर बाज उलूम गैबिया ही मुराद हैं, अगर समझ रहे हैं, अगर बाज उलूम गैबिया ही मुराद हैं, हाँ अगर बाज इल्म गैब मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है, यानी उनकी क्या बड़ाई है अगर बाज इल्म गैब उनको मुराद है हासिल है। मालूम है बहुत सारे इल्म गैब, मतलब इसको बात से मुराद क्या है अब ये तो समझिए पहले। एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनिए। इल्म के अंदर गहराई पैदा करो ना, तभी तो आपको कुछ मालूम होगा। ऐसे जाहिर से पढ़ने से आपको क्या मालूम होगा, ये तो बता दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आप ही से पूछा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शान और अजमत वाला कोई है? सुनो, मैं अब तक अपनी बात से हटा नहीं हूँ, मैं जो ने पहले कहा था मैं अब भी उसी बात को कह रहा हूँ जी। लेकिन मसला आप एकदम मैं जब बात करता हूँ तो आप ये कह देते हो कि अलग टॉपिक है वो इल्म गैब का, आप उस पर अलग से बात कीजिए। अब मेरी बात तो सुनिए, पहले 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, आप 2 मिनट के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं इसको पूरा कर देता, फिर आपकी बात को सुनता, बड़ा मजा आता। मुझे हिफज याद है, बात सुनाना चाह रहे हो। आपको नहीं सुनाना है, मुझे सिर्फ आपको बताना है आपके सामने, फिर आप इस पे अपनी बात को 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए बस आप, ठीक है? सुनाइए 2 मिनट के लिए। देखिए मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा था, ये सिर्फ हमारी 5 मिनट की बात थी जिसे आपने आधे घंटे से ज्यादा तब्दील कर दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आपको क्या कमजोरी नजर आई है, ठीक है? आपने किस वजह की बिना पर आपने काफिर कह दिया। आपने उस बात को घुमा फिरा के लागे आपने किस बात पे छोड़ा कि हजरत थानवी ने अल्लाह के रसूल को जानवरों की इल्म से तशबीह दी है। अबे ये क्या बात हुई? मैंने अभी कुरान की मिसाल दी आपको कि जब तक आप पूरी बात नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना सा टुकड़ा बयान कर दिया, अगर तुम किसी आदमी के सामने सिर्फ यही बयान करो, वहां तुम सुकारा बयान ना करो, मुझे ये बता दीजिए वो क्या समझेगा इस बात से। 1 मिनट ये बताइए, तो कायनात में मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने नहीं बताया, अब मुझे घुमा फिरा के मैं हर बात पे इकरार करता रहा जो आपके लिए अल्लाह के रसूल, मैं बिल्कुल जब भी इकरार किया, लेकिन आपने लास्ट में लाकर एक बात को आपने पूरी नहीं बताई और आपने इसे घुमा दिया। मैं कहने लगूं कि भाई जो कुरान करीम कहेगा वो सही है, आप कहोगे जी बिल्कुल सही है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला कोई बात गलत नहीं हो सकती। फिर मैं पूछूंगा कि कुरान करीम में जो आयत अल्लाह ने बयान की वो सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है, और मैं आगे कह दूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, देखो कुरान नमाज के लिए मना कर रहा है,
क्यों पढ़ते हो नमाज? ये तो बेवकूफी, सरासर बेवकूफी। तो वो तो मुनाफिकों की हरकतें है ना भाई, वो तो मुनाफिकों की हरकतें हैं। तुम भी तो मुनाफिकों वाला काम नहीं नहीं, मैं मुनाफिक वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनाफिकत दिखा रहा हूँ उलमाए देवबंद की। मुझे इल्म गैब के बारे, तुम आप ही कहते कि उलमाए देवबंद इल्म गैब के कायल नहीं है और हम इल्म गैब के कायल हैं। तो मैंने देखिए हजरत, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि किसी एक टॉपिक को चुन लीजिए जिसमें आपको आसानी हो, पर आपने कहा सिर्फ उलमाए देवबंद की तौहीन दिखाइए, तो मैं तौहीन दिखा रहा हूँ, तब भी आप सुनने के लिए गवारा नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसको तौहीन तो नहीं मानते, तौहीन तो अच्छा अल्लाह के रसूल के लिए गैब साबित कर रहे हैं, तौहीन ही आपके लिए अल्लाह के रसूल कुरान कह रहे हैं कुल इन्नमा अना बशर, और आप उनके लिए इल्म गैब साबित कर रहे हो, तो तौहीन आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, ये बता दीजिए। सुने आपने अभी थोड़ी एक मिनट पहले आप सुन लीजिए। आप अरे अब मेरी एक बात हो रही है, अब नहीं सुनोगे आप। मैं सोच रहा था कि आप अच्छे आलिम इल्म वाले हैं, शायद आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर पाएंगे, पर आप भी उखड़ गए हैं। ठीक, एक बात मैं कह दूं, उसके बाद आप सुनाते रहना, मैं सुनूंगा आपकी हर बात, ठीक है? आप मेरी एक बात तो सुन लीजिए। सुनाइए। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है? आपने जिस तरीके से मुझे समझाया कि अगर किसी बड़े आलिम को छोटे बच्चे से तशबीह दे के उसका इल्म तो बच्चे जैसा है, तो तौहीन है, लेकिन ये भी तौहीन है। आपको बता दूं कि एक बच्चा है, आप उसको ही इल्म का पहाड़ बताने लगे, उसको ही मुफ्ती है ना किराम बताने लगे, उसको कहने लगे तो इतना बड़ा आलिम है और अब आता जाता कुछ है नहीं उसको, तो ये भी तो एक तौहीन ही हुई ना। मानते हो या नहीं मानते हो, आप ये बताइए। चलिए ये मानते हैं, मगर जो आलिम है उसको आलिम बताना ये क्या है, अदब है कि बेअदबी है? आप अपनी बात बता दीजिए, आप फिर बाद में कहोगे कि आप, चलिए इंशाल्लाह आप मुझे अपनी बात बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए फाइनल कर दीजिए। आप बड़ी अच्छी बात कही मुफ्ती साहब आपने, मुफ्ती फरहान सिद्दीकी साहब। जी आप मेरा फाइनल कर दीजिए। दिल खुश हुआ है आपकी ये बात सुनकर। शुक्रिया, आप बता दीजिए। किसी छोटे से बच्चे को आलिम से तशबीह देना, आलिम अपनी बात बताई दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ हजरत, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर कि किसी आलिम को एक बच्चे पागल की तरह बता देना किसी आलिम के इल्म को, ये बेअदबी है। मगर ये भी बेअदबी आपने कहा कि किसी एक बच्चे को इल्म का पहाड़ बता देना। चलिए, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का पहाड़ समझ रहे हैं अपने सामने, हमारे उलमा के सामने, हमारे नबियों के सामने, समझ नहीं रहे है या नहीं है? समझने से कुछ नहीं है, आपके समझने से नहीं होगा, वो तो है। माशाअल्लाह, आपने कबूल कर लिया, से थोड़ा ही होगा। अरे आपने कबूल कर लिया, क्या बात, ये तो हर कोई कबूल करेगा। चलिए, तो आप थानवी जी से पूछिए। वो अल्लाह के सुनिए, वो नबियों में सबसे अफजल है, तो उनका इल्म सबसे अफजल क्यों नहीं होगा? अल्लाह अकबर। सारी कायनात में सबसे आला और अफजल इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन इल्म हाजिर है, वो इल्म गायब नहीं है, ये भी बात आप बातें कर लें। ठीक है, इल्म गैब पर बाद में बात होगी इंशाल्लाह। मैं अभी इल्म गैब पर जा ही नहीं रहा हूँ हजरत, अभी तो मैं तौहीन रिसालत ही दिखा रहा हूँ उलमाए देवबंद की बात ही तो कर रहे हैं उन्होंने। नहीं, नहीं है यार, एक मिनट देखिए, वो गैब के कायल नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है उनसे, ठीक है? मगर बताइए, जो मेरा एतराज है उसको समझे हजरत। जी बताएं। आपने एक बात जो यहाँ कही है बहुत अच्छी कही है कि बच्चे को इल्म का पहाड़ बता देना और आलिम को बच्चे से तशबीह देना, ये बेअदबी है। एक बात को बार बार तो मेरे नबी वो कर रहे हो यार। हजरत, मेरे नबी का इल्म जी क्या किसी बच्चे की तरह है, क्या किसी जानवर की तरह है? वो मेरे रसूल के इल्म को नहीं तशबीह दी उन्होंने, जो गायब वाला इल्म की बात कर रहे हो उसकी तशबीह दी। यार पहले बात को तो समझो पूरी, उन्होंने अल्लाह के कुल इल्म को थोड़ा ही तशबीह दी। अरे अल्लाह के रसूल के इल्म के सामने तो सब कुछ ढेरे, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो जाहिर वो इल्म हाजिर का इल्म है। अच्छा ये बताइए हजरत, नहीं तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है, नहीं आता क्या अल्लाह ने? बिल्कुल नहीं। आप कुरान पाक का इनकार कर रहे हैं हजरत। सुनो, उन्हें गैब का सिर्फ इतना ही मालूम है जितना अल्लाह ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इनकार आप कर रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए और आज का मफ़हूम समझिए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इंशाल्लाह मैं आपसे गैब के ऊपर बाद में बात करूंगा, ठीक है? पहले इसको हजरत सिर्फ इतना ही। हाँ तो मैं गैब पर अभी बात ही नहीं करना चाहता। अरे मैं तो सिर्फ तौहीन रिसालत ही दिखाना चाहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं एक ही टॉपिक पे बात करता हूँ। ठीक, आपसे मैंने ये कहा था हजरत कि किसी एक टॉपिक को चुन लीजिए जिस पर आपको आसानी हो, जिस पर आप बात कर सकें। मगर आपने कहा कि पहले ये टॉपिक बाद में चुने जाएंगे, पहले बता दीजिए उलमाए देवबंद की। अच्छा ये बताइए, ये आपको जो है हुजूर की तौहीन नजर नहीं आ रही? हुजूर के इल्म को नहीं कहा है? अब मेरी बात ठीक है, अब आपकी बात हो गई है।
आपको ये तौहीन लग रहा है हज़रत थानवी का जुमला, ठीक है? आपकी ये तो कहना चाह रहे हैं ना आप, तौहीन लग रहा है आपको? तौहीन तो है ही, आपने भी खुद कबूल कर लिया। अब मेरी बात सुनेंगे। अब आपकी बात पूरी हो गई, आपने बोल दिया तौहीन है, अब मेरी भी बात सुन ले थोड़ी देर। 1 मिनट और बता दूं आपको? हाँ जी बताइए। आप यहाँ फंस गए हैं कह के। आपने ये कहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है, ठीक है जी। मगर यहाँ थानवी जी कह रहे हैं जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है, वो तो जानवरों के भी लिए तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। आपने मेरी बात को समझा कि नहीं? अभी जी बिल्कुल समझ चुका हूँ मैं। क्या समझे, थोड़ा बता दें, क्या समझे? पहले आप मुझे ये बता दो, बीच में तो नहीं बोलोगे आप? नहीं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पहले मुझे यहाँ पे क्लियर करके बता दीजिए आप यहाँ क्या समझे हैं। आप सुनिए, पहले आपकी बात हो गई क्या पूरी? अभी अरे हजरत मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी करा दीजिए। अभी आप कह रहे थे कि मैं आपकी बात को सुनूंगा, पर मेरी वही बात पूरी भी नहीं हो पा रही है अभी भी। तो इसलिए तो मैं चुप हूँ, इसलिए मैं और 2 मिनट चुप हो जाऊंगा। आप बता दीजिए। हाँ। और अगर आपकी बात कुछ रह गई हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, मगर थानवी जी कह रहे हैं जैसा इल्म गैब हुजूर को है ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है जी। अब थानवी जी तो हज़रत थानवी जी की बात में सुनिए। अब समझने की, हज़रत थानवी, मैंने कहा है कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं है, ठीक है? हज़रत थानवी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को गैब के इल्म की 2 किस्में कर दी उन्होंने, एक कुल एक बात। अच्छा, किसी का बार बार फोन आ रहा है, चलिए कट गया, कई बार आ गया फोन जी। चलिए आप मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट में हम बात खत्म कर देते हैं। मैं आपको आपकी बात का भी जवाब दे देता हूँ। हज़रत थानवी में देखिए, हज़रत थानवी ने कहा कि इल्म गैब 2 तरह के थे, कुल इल्म गैब, एक बात। कुल का इनकार कर दिया उन्होंने, ठीक है? और जो बाज इल्म गैब है उसमें उन्होंने कह दिया कि बाज इल्म गैब जो है उसमें कोई तखसीस नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। हर चीज को थोड़ा ना बहुत बाज से मुराद देखिए अब क्या है वो। मैं जो कह रहा हूँ ना, देखो मैंने कहा इल्म गैब नहीं है अल्लाह के रसूल को, ठीक है? हज़रत थानवी ने कहा कि बाज इल्म गैब है, लेकिन वो बाज इल्म गैब ऐसा है जिसकी कोई तखसीस नहीं है, कोई खास इल्म गैब नहीं है। वो तो ज़ैद को भी है, अमर को भी है, सबको है वो इल्म गैब, यानी अल्लाह के रसूल की उसमें तखसीस नहीं है। अब ये बता दीजिए वो भी इल्म गैब के कायल नहीं है, मैं भी इल्म गैब का कायल नहीं। तो बात क्लियर हो गई ना? आप कैसे कह रहे हैं कि आप फंस गए हैं? यानी बात तो क्लियर हो गई ना। अल्लाह के हज़रत थानवी भी ये कह रहे कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ हज़रत थानवी को गैब का, वो अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं है। तो इसमें कौन सा फंस गया हूँ मैं? आपकी बात को समझ गए आप? यानी बात का जवाब दे दूं? यानी आपका और आपकी जमात का, यानी थानवी जी का भी यही अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म गैब हासिल है। बात को सुनने अरे सुन तो लो, यहाँ पे इकरार किया है, देख लीजिए आप, किताब खोलिए, उठाइए। ये कह रहे हैं कि आपकी जात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं? अब सुने हजरत, बात को समझे मेरी जी। गैब ही कह रहे हैं जी, बाज गैब है या कुल गैब है? अगर बाज में गैब मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है, यानी उनकी क्या खुसूसियत है, क्या बड़ाई है? कोई खुसूसियत नहीं है, मैं भी तो बोल रहा हूँ इसी बात को। हुजूर की कोई खुसूसियत नहीं है। अरे गैब के इल्म में कह रहे हैं, गैब के इल्म यार पहले पढ़ तो लो पूरा इल्म। हाँ, मैं गैब का ही कह रहा हूँ, यानी पता चला, 1 मिनट, पता चला जैसा गैब का इल्म हुजूर को हासिल है, जैसा हुजूर को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता किया है, ऐसा इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। यही है ना? ठीक है, यही है ना। तो इससे क्या बात चल रही है कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं मालूम हो? आपने मंतिक नहीं पढ़ रखी है क्या? आप आलिम हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए पहले। मैंने आपको बोला था ना, मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मुनाजरा नहीं करता हूँ, मगर मैं अपने अकीदे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमाए देवबंद के सामने, बड़े बड़े मुफ्तियों के सामने अपना अकीदा रखता हूँ। और उलमाए देवबंद की जो तौहीन आमेज गुफ्तगू है, जो उनकी बातें हैं। ठीक है, आपकी बात सही है। अब सुनो, आप अपनी बात को खत्म कर दीजिए, मैं आपका सेल्फ होने ले रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए, आप हो गई आपकी बात, अब मैं बता दूं आपको। मेरी तो बात ही नहीं हुई है, मेरी बात सुनी कहाँ है आपने? यार अब सारी बात आप सुना रहे हो, ठीक है, मैं फिर चुप हो रहा हूँ। बात सुना देते हो फिर बोल देते हो, मेरी बात नहीं सुनाइए। आप क्या बात? मुझे आपसे जवाब चाहिए था, मुझे आपसे जवाब चाहिए था। तो थानवी जी कह रहे हैं जैसा इल्म गैब हुजूर को हासिल है, समझ रहे हैं, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। क्या हजार बात बोल दिया तुमने, ये बात तुम्हारी बात यही है ना? बस सुनो भाई, हजरत सुनो तो कम से कम जी। जैसा इल्म हमारे नबी को हासिल है, जैसा इल्म गैब अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दिया है, क्या ऐसा ही इल्म गैब जानवरों, पागलों, बच्चों को भी माअज़ल्लाह हासिल है? जी
जी अब हो गई क्या आपकी बात पूरी? ये बता हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ ना, हाँ या ना बोलना, नहीं बोलूंगा। पूरी हो गई क्या? नहीं बोलूंगा आपकी बात। हाँ मैं जब ही तो जवाब दूंगा ना। हो गई आपकी बात पूरी? इनका फोन मत बोलना, मेरी बात नहीं सुनिए। अब आपकी बात हो गई पूरी? अच्छा चलिए, जवाब तो दिया नहीं है, पूरी क्या होगी? जवाब देंगे तभी तो कोई बात का पता चलेगा। मैं नहीं इधर से कह दिया, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं जवाब तभी तो दूंगा ना, फिर आप बीच में बोल जाते हो। जब मैं जवाब देता हूँ ना तो बीच में बोल के कह दो मेरी बात पूरी हुई। आपकी बात पूरी हुई तो मैं जवाब दूं आपका। चलिए जवाब दे दीजिए। देखिए, हजरत थानवी ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल को कुल गैब का इल्म नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना, आप भी तो इस बात को कह रहे हैं कुल का ही नहीं, ठीक है, बाज का इल्म गैब है। लेकिन वो जो बाज का इल्म गैब है वो भी ऐसा इल्म गैब है जो सब कोई, मतलब अल्लाह के रसूल की कोई तखसीस नहीं है इसमें। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं है, ठीक है, पहली बात होगी। अब इसका जवाब सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल को इल्म गैब क्यों नहीं है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैक, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, मुझे गैब की वही बातें मालूम होती है जो अल्लाह बताता है। अल्लाह ने अगर कोई बात बता दी तो मुझे पता लग गया, मुझे गैब का कोई इल्म नहीं है। ये कुरान की आयत कह रही है। अगर आप अब भी गैब का इल्म साबित करते हैं तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप कुरान करीम की आयत का इनकार कर रहे हैं। आपको जवाब मिल गया? और कुछ रह गया आपका? इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमा को आप जानते हैं? आपका जवाब मिल गया? आपका जवाब मिल गया, ये बता दीजिए। मुझे उलमाए देवबंद का अकीदा पता चल गया, जवाब तो नहीं मिला, क्योंकि कुरान तो फरमा रहा है। हाँ बताइए क्या फरमा रहा कुरान? कुरान पाक तो फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। सुनिए, पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, बिस्मिल्लाह सूरत से पहले पढ़ी जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपको तो कुरान करीम का अदब भी नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है कुरान करीम। ओहो, हाँ बहरहाल वमा हुआ, ठीक है, बताइए क्या पढ़ा है आपने? आपने देखिए इसको भी बेअदबी जाना। मैंने आउज़ु बिल्लाह को छोड़ा, एक मिनट, आउज़ु बिल्लाह को छोड़ा, इसको आपने बेअदबी जाना। मगर एक मिनट, कुरान हुक्म देता है, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ बताओ। ठीक है, हाँ मान लिया मैंने आपकी बात को। बताओ जी। अब गलती लेकिन आप फिर भी नहीं मानोगे, ठीक है, आप बताओ, आयत पढ़िए आप। चलिए भाई, मैंने कहा ना कि मुझे उलमाए देवबंद के अकीदे का मालूम हो गया, पता चल गया, पर आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ये तो पढ़ा है ना आपने? हाँ। अच्छा, क्या मतलब है इसका? और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, वमा हुआ, ये किस गैब की बात चल रही है? जो गैब अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल को देते हैं उस गैब की बात चल रही है, उसमें बखील है नहीं अल्लाह ताला, जो खुद से वो आलिम गैब का इल्म जानते हो। मैं भी तो इसी बात को कह रहा हूँ यार, फिर तुम बेहुदा। मैं भी इस बात का कायल हूँ, कुल अल्लाह के रसूल को गैब का वही मालूम है जो अल्लाह वही करता है। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन का मतलब है जो गैब की बातें अल्लाह ताला पूछाते हैं उनमें वो बखील नहीं करते, जू का तो लोगों के सामने पेश कर देते, लेकिन उनको खुद गैब का इल्म नहीं है। गैब की वही बातें वो जानते हैं जो अल्लाह बताता है। मैं भी तो इसी बात को कह रहा हूँ। आपकी बात अब बता दीजिए मुझे आगे। आपको गुस्सा आने लगा? नहीं, अब मुझे बात बता दीजिए आगे। गुस्सा मुझे नहीं है। अब आप ये बताइए, जवाब नहीं मिला ना, आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या मानते हैं? एक मिनट रुक जाइए आप यार, एक बात का तो नहीं मुझे बताइए, मैं सबूत आपके घर से ही दूंगा। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ये क्या था आपने जो पढ़ा था अभी? इससे आपकी खुद की बात की तरदीद हो गई, तो आप हजरत हाजी इमदादुल्लाह को ले आए उठाए। अब पहले एक बात तो कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे मैं तो जाना ही नहीं चाहता था इल्म गैब पर आपने टॉपिक को बदल दिया। आपने टॉपिक अलल गैबी यानी जो गैब की बातें हैं, समझे, उसमें वो बताते हैं अल्लाह के रसूल, लेकिन वो गैब से मुराद वो है जो अल्लाह ताला बताते हैं बातें। सुनो भाई, एक मिनट, अरे यार सुनो, चुप तो। आप हमारे तरफ से क्या अकीदा रखते हैं, क्या जो है जहन रखते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इल्म गैब जो मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो किस तरह का करते हैं? आप हमारे ताल्लुक से जो जहन रखते हो थोड़ा उसको खुलासा करें। एक मिनट, ठीक है, मैं खुलासा करता हूँ। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम, ये शैतान रजीम का कौल नहीं है, ये अल्लाह ताला ये कुरान करीम के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला ये जो कुरान करीम अल्लाह ताला गैब की बातें बता रहे हैं, अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल इसमें बखील नहीं है। यहाँ कुरान की तुम आगे पीछे की याद देखते नहीं हो, उठा के बीच के, मुझे तो मुनासिब ही नहीं हो रहा है तुमसे बात करना। तुम हंस गए हैं आप, आपने खुद ही कह दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ठीक है?
हाँ हाँ बताओ, क्या मैं फंसा हूँ, मैं बता रहा। अरे भाई आपने अभी कहा ना क्या वमा हुआ अलल, हाँ 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 बिज़नीन वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम, हाँ शैतान रजीम का कौल नहीं, कुरान करीम है। हाँ तो फिर चल रही है, कुरान करीम की बात चल सुन रही है, कुरान लीजिए करीम की जो वही आती है ना, सुनिए एक मिनट पहले मेरी बात सुनेंगे। यहाँ एक नुक्ता देता हूँ आपको। जिस तरह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं ना, इसी तरह के लोग कल भी मौजूद थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर हमला करते थे। ये उसी कुरान करीम की एक मिनट हजरत, ये उसी की दलील हजरत, एक मिनट मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। चुप है हजरत, एक मिनट चुप है, यहाँ सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ शक ही खत्म कर दिया है। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह फरमा रहा है। ठीक है ठीक है, समझे। जो हुजूर के इल्म गैब पर शक करते थे, हमला करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया है हजरत। आप तो खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही भूल रहे हैं, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो बात चल रही है ना, ये कुरान करीम की बात चल रही है। हाँ हजरत, कुरान करीम की बात चल रही है। कुरान करीम में हमारे नबी के लिए गैब का इल्म बताया गया। अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया है। हम रसूलुल्लाह के लिए अताई इल्म गैब मानते हैं, तस्लीम करते हैं। मगर उलमाए देवबंद हुजूर के इस इल्म को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से तशबीह देते हैं। आप फंस गए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे आप। अरे भाई मैं फंसा नहीं हूँ, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हो। सुन लिया है मैंने, इतनी देर से सुन तो रहा हूँ, अब मेरी तो सुन लीजिए आप। वमा हुआ बिक़ौलि शैतानिर रजीम जो है ना, इससे मुराद कुरान करीम की वही की बात चल रही है। कुरान करीम की जो वही नाजिल होती है ना, इससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है जो कुरान करीम की वही को लेके आते थे। और ये जो बात चल रही है कुरान करीम की वही की बात चल रही है। बेवकूफों, इल्म गैब पर अभी मत जाइए, मैं फिर बार बार कहूंगा, इल्म गैब पर अभी मत जाइए, सिर्फ तौहीन रिसालत सुनिए, ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए आप। तौहीन रिसालत ये तौहीन नहीं है जब तुम गैब के इल्म को साबित कर रहे हो। तुम मुझे इस बात का जवाब दे दो, अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा का हाल गुम होने पे क्यों नहीं मालूम हुआ जब गैब का इल्म था अल्लाह के रसूल को? बस छोड़ दो बात। यहाँ हिकमत है, यहाँ तयम्मुम की आयत मुबारका जो है वो नाजिल होने वाली थी, तो वो तो बहुत सारे और भी मौके थे जिनसे जहाँ जा रहे थे। देखिए सुनिए, हुजूर ऐसी जगह पे मौजूद थे जहाँ पे पानी ना था। और सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे हिकमत हर वाक़यात मालूम है। अरे हिकमत चुप हो जाए। अच्छा, जब मालूम भी है तो क्या आपका भी यही अकीदा है कि हुजूर नहीं जानते थे? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि। तुम पहली बात तो कुरान करीम का तुम्हें पता ही नहीं है। जब कुरान करीम का तर्जुमा तुम आलिम ही नहीं हो, तुम कैसे कुरान करीम कैसे पढ़ रहे हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अच्छा ये बताओ, जब मैंने आपको ये कहा कि आपका इल्म कोई खास नहीं है, जैसा इल्म मुफ्ती फरहान का है ऐसा इल्म तो एक छोटे से बच्चे को, मैंने जानवर का नाम नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया कि आपको बुरा लग जाता। यार गाली पे आ गए, अब गाली पे आ गए, गाली की बात, अब गाली पे आ गए। ऐसा करो फिर अब जाओ, अब आपसे बात करना मुनासिब नहीं है। ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता जो बेचारे फंस जाते हैं और गाली गुआ पे आ जाते हैं, फिर मैं ऐसे लोगों से बात करना मुनासिब नहीं समझता। जाइए, इज्जत को बचाइए, ठीक है भाईजान, अपनी भी इज्जत को बचाइए, अपने धर्म की भी इज्जत को बचाइए, और अपने थानवी जी और जो चार अकाबिर जो आपके जिन अकाबिरों को भी मानते हैं उन सब की इज्जत को बचाइए। मुझसे फिर बात ना करेंगे तभी बेहतर होगा। बची हुई है वो इज्जत, ठीक है। चलिए तो खैर खत्म कीजिए। एक बात और अगर प्यार मोहब्बत से बात करनी हो तो जिस टॉपिक पे बात करनी हो बात कीजिएगा। ठीक है, चलो। बदतमीजी से बात करना मेरी आदत नहीं है। फोन काट दीजिए, अब आप आ गए बदतमीजी पर। एक बात और सुन लीजिए। नहीं, अब बदतमीजी कोई बात नहीं, बात सुन लीजिए। हेलो, हाँ बोले। एक बात सुन लीजिए, आप मैंने शुरू में आपको सलाम किया था, आपने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। फिर वही बात के सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आप ये तो बताइए जरा मुझे। मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे या हमारे बुजुर्गों को यानी आला हजरत को आप क्या मानते हैं, क्या तस्लीम करते हैं, मोमिन या कुछ और? सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। मैं तो सुन ही रहा हूँ खामोशी से। ये देखिए, अब जो मैंने आपको बेवकूफ बोला है अभी, ये अब इसको गाली समझ बैठे हो, आप गलत बात समझ बैठे हो। मेरी भाई आपको गुस्सा आ गया इसलिए आप बोल रहे हैं। अरे गुस्से की बात नहीं है, जब गुस्से में ही बोला है। कसम खा के बताइए कि आपको गुस्सा नहीं आया। एक सुनो मेरी बात, एक बात क्लियर है। नहीं, आप कसम खा के मुझे बता दीजिए, खुदा की कसम खा के आप मुझे बता दीजिए कि आपको गुस्सा नहीं आया, आपने प्यार में बोला है। उस बात को छोड़िए, पहले बता दीजिए आपको गुस्सा नहीं आया, आपने प्यार मोहब्बत में बोला है। पागल। एक बच्चा है,
उसको वो भी वो बात समझ लेता है, लेकिन आप इतने बड़े आलिम होने के बाद भी। मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने क्या बोला, मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ यार। समझदार तो एक बेवकूफ भी उस बात को समझ लेगा, लेकिन आप समझदार होके भी नहीं समझ रहे हैं, तो बेवकूफ ना बोलूं तो क्या बोलूं आपको, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, बेवकूफ वाला जुमला अपने ही पास लौट आइए, क्योंकि आपको मैंने इतने वाज़ेह तरीके से बता दिया। अच्छा थानवी जी की आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं या अदावत में? भाई हम तो जो अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक बात करता है अकाबिर, उसको मानते हैं हम। अच्छा, तो थानवी जी की मोहब्बत यही है ना कि थानवी जी बहुत बड़े आलिम हैं, तुमने उनको इल्म, एक मिनट, छोटे से इल्म, नहीं, वो आशिक रसूल नहीं, दुश्मनाने रसूल थे। अरे तोबा कर लो आप। नहीं, तोबा कैसे कर लो भाई? सुनो मैं बताता हूँ, देखिए गलत नहीं बोला, देखिए सुनो ना, तुमने कैसे बोल दिया कि वो दुश्मनाने रसूल है? बिल्कुल दुश्मनाने रसूल है, मैंने आपको साबित किया है ना। अब देखिए दुश्मनी, देखिए आपके मुँह से को कुछ बोला मैंने? ओफो, आप बदतमीजी पे आ गए ना। ये दुश्मनाने रसूल क्यों बोला आपने, बता? इसलिए बोला कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बेअदबी है, तो मैंने कहा जी हाँ, ये अल्फाज वही बोलेगा मुफ्ती फरहान के लिए जो मुफ्ती फरहान से बुग़्ज़ अदावत रखा, दुश्मनी रखेगा, एलर्जी रखेगा। तो तुमने कहा हाँ, कहा था ना। सुनो एक काम करिए, कहा था ना। एक बात बता दूं आपको, सुनिए पहले। देखिए आप आलिम नहीं हो, आप जाहिल आदमी हो, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं आपसे इल्मी बात कर रहा हूँ ना, मैंने तो कोई जहालत वाली बात नहीं की। आप ही बदतमीजी पे आ गए हो मुफ्ती होके। देखिए सुनिए, मैं एक आम इंसान होके मैंने आपको गलत नहीं बोला है। अच्छा, दुश्मनाने, और मैंने शुरू में ही, सुनिए, मैंने शुरू में ही ये बोल दिया था भाई, दुश्मनाने रसूल को दुश्मनाने रसूल ही बोला जाएगा ना। तो बेवकूफों को भी तो बेवकूफ अच्छा बोला जाएगा। जैसा इल्म थानवी जी का है, ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है, कुत्ते और बिल्लियों को भी हासिल है। थानवी जी को तुमने थोड़े से इल्म की वजह से हकीमुल उम्मत बना दिया। जो तुम्हारे मसलक का सबसे बड़ा आलिम हो ना, उसको लेके आना। मैं तुम्हारे से ऐसा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो सुनो, तुम्हारे बस की बात नहीं है जो नूर हसन से बात करो, तुम घिर गए हो, फंस गए हो इस